سورۃ القدر ہے، مکی صورت ہے، 5 آیات ہیں۔ اور جیسے بات پہلے بھی ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پچھلی امتوں کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ ایسے لمبی لمبی ان کی عمریں تھی اور وہ لوگ اس طرح سے عبادات کرتے تھے۔ تو اس کو سن کر صحابہ کرام کو افسوس ہوا کہ ہماری تو عمر کم ہے اور ہماری عبادتیں اس طرح سے نہیں لکھی جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی تسلی کے لیے اور ان کے پیارے صحابہ کرام کی تسلی کے لیے اور اس پوری امت کے لیے یہ خوشخبری نازل فرمائی اور اس خوشخبری کو تا قیامت اپنے کلام پاک کے اندر رکھا کہ لوگوں کی عمریں زیادہ تھیں۔ اور یہ ایک عام مشاہدے کی بات ہے، اگر ایک انسان ایک دن عبادت کرنا چاہے تو یہ آسان ہے۔ ہاں، روزانہ کی اس روٹین پر بنیاد پر زیادہ عبادت کرنا مشکل ہے۔ ایک دن انسان 20 نفل پڑھ لے آسان ہے، 40 پڑھ لے آسان ہے، 50 روزانہ 20 40 50 نوافل پڑھنا مشکل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی آسانی کا معاملہ کیا ہمارے ساتھ، عمریں مختصر رکھی، عمر میں بھی کتنی آسانی دی۔ 10-12 سال تک کے اعمال بچپن کے پکڑ نہیں، جوانی کے جو درمیان کا کچھ 20-25 سال کا عرصہ ہے، 40 سال تک کے جو اعمال ہیں، جوانی کا دور ہے، اس کے اعمال کے بارے میں اگر کوئی نیک ہے اس کی نیکیوں پر اجر بے تحاشا، اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکثر گناہوں کو جوانی کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن پکڑ کرنا چاہیں تو پکڑ اللہ فرماتے ہیں میری پکڑ بہت شدید ہے۔ اور 40 کے بعد بڑھاپا، تو بڑھاپے کے جو اعمال ہیں اس میں آہستہ آہستہ نرمی برتی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہت ہی محبتوں کے معاملے فرمائے، اور اس ایک رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے افضل کہا ہے۔ اور یہ ہم خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ 1000 مہینے مسلسل عبادت کرنا مشکل ہے۔ یہ جنہوں نے کی تھی ان امتوں نے، ان کی ہمتیں بھی تھیں اور ان کو دی گئی یہ توفیق تھی۔ ہم بہت عاجز قسم کے لوگ ہیں، ہم سے تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو اللہ نے ہمارے ساتھ آسانی والے معاملے کیے کہ ایک رات کا قیام 1000 مہینوں کے قیام سے افضل ہمارے لیے قرار دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے، ہو اشارہ ہے اس کلام پاک کی طرف، ہم نے اس کو اتارا ہے فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ نے کیا سمجھا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح، فیہا، اس میں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر کام پر، سلام، سلامتی والی ہے، امن والی ہے یہ رات، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح نکلے، صبح کے نکلنے تک وہ رات مکمل امن و امان والی ہے۔ ہم نے اس کو اتارا لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، اور شب قدر کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر ہم پڑھتے رہے، سنتے رہے کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور طاق راتوں کا بے حساب کتاب 29 اور 30 روزے کے حوالے سے سمجھ میں آ گیا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ آخری 10 کے 10 دن یا 9 دن جو بھی بنتے ہیں، آخری عشرہ مکمل یہ عبادت کے لیے انسان اپنے آپ کو جوڑ لے، تیار کر لے، کمر کس لے۔ ہم نے اس کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ اب یا تو لیلۃ القدر میں اس کا اترنا قرآن پاک کا، کیونکہ قرآن مجید پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، پھر آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
मुबारक सीना पर नाजिल हुआ। तो अब यहाँ पर जो कहा कि हमने इसको लैलतुल क़द्र में उतारा, तो अब ये लैलतुल क़द्र में उतरना लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर भी मुराद है और आसमान दुनिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर उतरना भी इसमें आ सकता है। और कहा कि ये लैलतुल क़द्र क्या है, कितनी फजीलत है इसकी, समझाने को कहा कि ये 1000 महीनों की इबादतों से भी बेहतर है, 1000 महीने की इबादत से। और 1000 महीने की इबादत के साथ कुरान पाक की एक दूसरी सूरह मुबारका भी याद आ गई, सूरह सजदा, अलिफ लाम मीम सजदा, 21वें सिपारे में, 21वें सिपारे में जो है, तो अहादीस मुबारका के अंदर आता है कि अगर कोई इंसान मगरिब और इशा के दरमियान सूरह सजदा को पढ़ लेता है, अलिफ लाम मीम सजदा को, तो गोया उसने लैलतुल क़द्र में क़याम किया। इतनी फजीलत है, यानी कि लैलतुल क़द्र की फजीलत क्या है, 1000 महीने से अफजल। और एक दफा उस सूरत का पढ़ लेना क्या है, वो लैलतुल क़द्र के क़याम के बराबर। तो अब रोजाना इंसान मगरिब से इशा के दरमियान उसको पढ़ सकता है और ये फजीलत हासिल कर सकता है, क्योंकि लैलतुल क़द्र की जो रात है ये तो आखिरी अशरे में आती है और मगरिब और इशा के दरमियान का वक्त रोजाना दिन में आता है। तो लिहाजा इसको इंशाल्लाह अपने मामूलात में शामिल कर लें। उसके साथ साथ अल्लाह जिसको हिम्मत दे, तौफीक दे और ताकत दे, तो इशा के बाद, इशा की नमाज के बाद 4 सूरतें हैं और ये 27वें सिपारे की 3 आखिरी सूरतें हैं लगातार और एक सूरह मुल्क है, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया और सूरह हदीद 29वें सिपारे की, जहाँ से शुरू हो रही है सूरह मुल्क तबारकल्लज़ी, जो हमने पढ़ रखी है। तो ये 4 सूरतें रात को सोने से पहले का मामूल बना लें। इंशाल्लाह जब इब्तिदा में शुरू करेंगे वक्त कुछ ज़्यादा लगेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब रूटीन में आ जाएगी तो वो 10-15 मिनट लग जाते हैं इसको पढ़ने में, और अगर घंटा भी लग जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये अपनी ज़ात के लिए कमाना है। तो ये 4 सूरतें पढ़ने का मामूल बना लें सोने से पहले। हदीस मुबारका के अंदर आता है, मफ़हूम है, अल्लाह कमी बेशी मुआफ़ फरमाए, कि जो लोग इन सूरतों को पढ़ने की आदत बना लेते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पाक फरिश्ते इन लोगों को जन्नतुल फिरदौस के रिहायशी कहकर पुकारते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, कितनी बड़ी बात कि इंसान जन्नत का रिहायशी कहलाता है, इंसान जन्नत का रिहायशी कहलाता है। किस वजह से? अगर वो सोने से पहले इन 4 सूरतों को पढ़ने का मामूल बना ले। 27वें सिपारे की आखिरी 3 सूरतें जो लगातार हैं, सूरह रहमान, अक्सर लोग रहमान बोलते हैं, ये लफ्ज़ रहमान नहीं है, रहमान, रा पे ज़बर, रहमान, अल वाक़िआ, अल हदीद और सूरह मुल्क, ये चारों पढ़ने से इंसान क्या कहलाते हैं? जन्नतुल फिरदौस के रिहायशी। अल्लाह हम सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। तो ये एक बात 1000 महीनों से अफजल की जो मुतल्लिक़ थी वो बता दी। और फिर साथ कहा कि सिर्फ यही नहीं कि 1000 महीनों से अफजल है, इसमें लगातार फरिश्ते नाजिल होते रहते हैं और रूह भी, रूह का मतलब हजरत जिब्रील अमीन भी हो सकते हैं, और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये फरिश्तों के अलावा कोई और मखलूक है। बहरहाल जो भी हो, मकसद इसका यही है कि इसमें इंसान के लिए बातनी हयात और रूहानी लिहाज से खैर और बरकत का एक ख़ास किस्म का नुज़ूल होता है, और ये किसकी तरफ से होता है? बिइज़्नि रब्बिहिम, रब के हुक्म से। तो यहाँ भी बता दिया कि ये लैलतुल क़द्र का आना, इसमें लोगों को इबादतों का नसीब हो जाना, इससे फ़ायदा उठा लेना, ये भी रब के इज़्न से, रब की इजाज़त से ही है। हर कोई नहीं खड़ा हो सकता, हर कोई इबादतें नहीं कर सकता, हर कोई अल्लाह को नहीं याद कर सकता। हाँ, जिससे खुद अल्लाह चाहें उसे अपनी याद दिला दें। अल्लाह हमेशा हमें उन लोगों में रखे जिनसे वो अपने जिक्र करवाता रहे। और कहा कि ये फरिश्तों का आना और ये रूह का आना और ये तमाम काम जो हैं ये इस रात में होते हैं, और ये रात बहुत ही अमान वाली है, सलामती वाली है।
बुजुर्गी वाली है, बरकतों वाली है। और ये ऐसी एक बेहतरीन रात है कि इंसान जब इसमें अल्लाह के लिए इबादतें करता है, और अल्लाह हमें अपने लिए इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए, जब इंसान अल्लाह के लिए इसमें इबादतें करता है तो अपनी इबादत की लज्जत और मिठास को महसूस करता है। और इसी तरह से हजरत जिब्रील अमीन और उनके साथ वाले फरिश्ते इस रात में जितने भी लोग अल्लाह की इबादतों में मसरूफ हों, वो उनके ऊपर सलातो सलाम भेजते हैं और उनके हक में रहमत के लिए और सलामती के लिए दुआएं मांगते हैं। तो कहा कि ये तब तक सिलसिला जारी रहता है यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाए। तो यहाँ पर कुरान पाक की कदर व मंजिलत भी बता दी कि कुरान पाक को नाजिल ऐसा नहीं कर दिया कि किसी आम दिन में कर दिया। ऐसा दिन था कि जिसकी रात लैलतुल कदर, ऐसी रात जो 1000 महीनों से अफजल है, उसमें कुरान पाक को नाजिल फरमाया। तो ये अहमियत हमारे जहनों में बिठाना है कि एक तो इसका कलाम इलाही होना ही बहुत बड़ी बात है कि ये कलामुल्लाह है, किताबुल्लाह है। फिर उससे बढ़कर जिनको मुकर्रर किया कि ये जिस नबी पर आए वो नबी सबसे अफजल, फिर जिस फरिश्ते को मुकर्रर किया कि वो इसको ज़मीन की तरफ लाएं, वो फरिश्ते फरिश्तों में सबसे अफजल। फिर इसी तरह से वो घड़ियाँ, वो साअतें जिनमें ये कुरान करीम नाजिल होता रहा, वो सबसे अफजल घड़ियाँ। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो इस कलाम पाक के लिए सब कुछ आला चुन रहे हैं। नबी सबसे आला, वक्त सबसे आला, फरिश्ते सबसे आला। और कुरान पाक की एक एक सूरत जब हम इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें तौफीक दे पढ़ने की, हम पढ़ेंगे तो हर कुरान पाक की हर सूरत के अंदर यह बात है कि इस सूरत में इतने फरिश्ते इजाफी आए, इस सूरत के साथ इतने फरिश्ते इजाफी आए। इंशाअल्लाह ये हम सुनते रहेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तो ये मयार है कुरान पाक के लिए। और हमारा मयार क्या है कि घर में, खानदान में जो बच्चा यतीम हो, जो बेसहारा हो, जिसकी स्कूल की फीसें ना कोई अदा कर सकता हो, जो स्कूल के सबक में नालायक हो, जो हद से ज्यादा शरीर लोग हों, जो दुनियावी लिहाज से सिफर हों, साफ लफ्जों में जो दुनियावी लिहाज से सिफर हो, हम कहते हैं इसको मदरसे में डाल देते हैं, हाफिज भी बन जाएगा। ये हमारा इंसाफ है। अल्लाह जब अपने कलाम के लिए इंतखाब करते हैं तो सबसे आला, हम जब अल्लाह के कलाम के लिए इंतखाब करते हैं तो सबसे बेकार जो हमारी नज़र में होता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये कुरान करीम की तालीम हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये हमारी बेवकूफ़ी है। हम जिसे अदना समझ रहे होते हैं, ये किसी काम का नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं ये मेरे काम का है, इसको मैंने अपने काम के लिए बनाया। हमारी नज़र में जो सिफर है उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कलाम के लिए चुन लेते हैं। लेकिन हमारा तो मयार है ना, हमने तो अपना मयार जाहिर कर दिया कि जो दुनिया के काम का नहीं है उसको हिफज करवा दो। हम कभी भी ये नहीं कहते कि खानदान में ये बच्चा सबसे लायक है, सबसे ज़हीन है, सबसे फरमानबरदार है, लिहाजा इसको कुरान पाक की तालीम दिलवानी चाहिए, नहीं। तो अल्लाह हमारी अक्ल को सीधे रास्ते पर और सीधे सिमत में लगा दे और हमारे साथ अल्लाह बहुत आसानियों वाले मामले फरमाए। वो रब हम पर बहुत मेहरबान है और अल्लाह हमसे मेहरबानियों वाले मामले फरमा ले। अपने कलाम पाक के इन पैगामात को अल्लाह हमारे सीनों में उतारे और हम पर उन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।